Hello students, good morning. Jai Swami Narayan. All of you, welcome to class 4th in Atmiya Green School. My name is Prajakta and I am a maths teacher. Now, we will start lesson number 5, factors and multiplies. Before starting our today's topic, first we will see what we had learned our last classes. So now, all of you, open your textbook. Now we will see what you had learned our last classes. So student, all of you know very well what you had learned. First you had learned about the multiplies. Then after we had learned the property of multiplies. So which property of multiplies? First property of multiplies is every number is multiple of itself. Every number is multiple of itself. Then property number 2, every number is a multiple of 1. Every number is a multiple of 1. Then property number 3, a multiple of number is always greater than or equal to the number itself. A multiple of number is always greater than or equal to number itself. Then property number 4, a number has an uncountable number of multiplies. A number has an uncountable numbers of multiplies. Then property number 5, there is a no largest multiple of number. There is no largest multiple of the number. This is the property of multiplies. Then odd and even number. What is the odd number and what is the even number? A number which is completely divisible by 2, this is called even number, and number is not divisible by 2 is called a odd number. So this is odd and even number. Then after we had learned the factor. So what is the factor? A factor of number divide a number without a leaving remainder. A factor of number divide a number without leaving a remainder. When we are divide any number, we will get remainder is 0, means that number are the factor of the number. For example, 3 into 5 equal to 15. So 3 and 5 both are the factor of the 50. So when we are divide 15 by 5, we will get quotient 3 and remainder will be get 0. And when we are divide 15 by 3, we will get quotient 5 and we will get remainder 0. Means 3 and 5 both are the factor of the 50. When we multiply two or more number, we get product. The product is a multiple of each of the number. Multiply each number is the factor of the product. Each number is the factor of the product. Then factor tree. This is the diagram of the factor tree. This is called the factor tree. So look at here that 3 diagram. We are take out the factor of number up to a number is a prime number. Which number? Up to a prime number. So this is the factor tree diagram. Then after we had learned the prime and composite number. So what is the prime number and what is the composite number? A number which have only 2 factor. A number which have only 2 factor. 1 and the number itself. 1 and the number itself is called prime number. A number which have more than 2 factor. A number which have a more than 2 factor is called composite number. जो नंबर के ओनली 2 फैक्टर्स रहते हैं 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर. और जो नंबर जिसके फैक्टर 2 से भी ज़्यादा है उसको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर. Then after we had learned the property of factor. So which property of factor? Every number can be divided by 1. Every number can divided by 1 without leaving a remainder. Therefore 1 is the factor of every number. 1 is the factor of the every number. And one thing again, 1 is the smallest factor of every number. 1 is the smallest factor of every number. So 1 is the factor of every number and 1 is the smallest factor of the every number. Then property number 2, every number can be divided by itself without leaving a remainder.
Therefore, every number is a factor of itself number. Every number is divided by itself number. That means every number is the factor of itself number. A number has a limited number of factor. A number has a limited numbers of factor. 15 has a 4 factors and 24 has a 8 factors. So every numbers have a limited factors. A factor of number neither equal or small than the number. The biggest factor of the number is number itself. The biggest factor of the every number is the itself number. So this is property of factor. Then twins prime number. What is the twins prime number? A prime number which is differ by 2. A prime number which is differ by 2 are called a twins prime number. Means when we are taking the 2 prime number. Which number? 2 prime number. Then after we will take out the difference between the two numbers. Means for example 5 and 7. What is the difference between the 5 and 7? In 5 and 7 which is the big number? 7. 7 minus 5 we will get 2. Means 5 and 7 differ is the 2. Means 5 and 7 this is the twins prime number. What is twins prime number? So this is twin prime number. Then after we had learned the common factor SCF. So how to take out common factors? When we are taking the two number, for example 12 and 15, which is the number is common? First we are take out the factors of 12 and 15. So what is the factor of 12? 1, 2, 3, 4, 6 and 12. This is the factor of 12. And what is the factor of 15? 1, 3, 5, 15. This is the factor of 15. Now which is the number is common in the 12 and 15's factor? 1 and 3 that are the common factor in the 12 and 15. Now this is the common factor. Now we want a SCM. SCM means highest common factor. Highest means bada. So which is the big number from 1 and 3? The SCF from 1 and 3 we will get 3. So 3 is the SCF of 12 and 15. So this is SCM. Highest common factor is normally written as SCF. It is also called as a greatest common divisor GCD. उसको क्या बोलते हैं? GCD. Then next, if a number is factor of another, the number than SCF is a smaller of the two number. If the factor of another number, the SCF is the smaller than two number. Then two number which have only one as the common factor are called co-prime number. A number which have only one is the common factor. Which number is common factor? 1 is the common factor is called a co-prime number. Then after we had learned the common multipliers. Early we had learned the common factors, then common multipliers. So now look at one example. What is the common multipliers? Now which is the word coming is multiply. So what is the multiplies of 3? So we are multiply 3, 1, 2, 3, 4, 5 up to we will multiply up to here lots of number. Okay, जब हम multiplies निकालते हैं तब हम लिमिटेशन नहीं रहती है, हम कितने उसको किसी भी नंबर कितने टाइम में मल्टीप्लाई कर सकते हैं. हमने यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 20 तक हमने 3 को मल्टीप्लाई किया. उसको क्या रहती है? जब हम 3 का मल्टीप्लाइज निकाल रहे हैं किसी भी नंबर का, तो उसको हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं 1 नंबर को. और जब फैक्टर निकालते तब क्या करते हैं? उसके फैक्टर निकालते हैं, मतलब उस नंबर को कौन से नंबर के साथ डिवाइड होता है. और मल्टीप्लाइज निकालते समय हम क्या करते हैं? 1 नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं. देन मल्टीप्लाइज ऑफ 4 के मल्टीप्लाइज क्या है? 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44 एंड सो ऑन. ये क्या है? 4 के मल्टीप्लाइज है. सो नाउ वी वांट अ कॉमन फैक्टर. विच इज द कॉमन? 12, 24 एंड 36. दे आर द कॉमन फैक्टर
in the 3 and 4. Now we want a LCM. LCM means lowest common multiply. From the 3 and 4, which is the small number, 12 is the small number, means LCM is our 12. Okay, so this is the lowest common multiplies, LCM. The lowest common multiplies of two or more number is the smallest number that is divisible by each of the number. If one number is multiple of another, if the one number is multiple of another, the greatest number is the LCM of two number. अगर टू नंबर है और वो एक दूसरे के मल्टीपल है तो वो जो ग्रेटेस्ट नंबर होता है दोनों में से वो हम क्या होता है, हमारा LCM होता है. नाउ लुक एट हियर 6 एंड 12. 6 और 12, 6 का मल्टीपल 12 है, 6 के टेबल में 12 आ रहा है, 12 है यहाँ पे. तो 6 और 12 में से बड़ा क्या है, 12 है, तो हमारा LCM क्या होगा, 12 होगा. इफ द टू नंबर आर को प्राइम देयर इज LCM इज प्रोडक्ट ऑफ द नंबर. अगर दोनों भी नंबर क्या है, को प्राइम नंबर है. को प्राइम मतलब ऐसे नंबर जिसके कॉमन फैक्टर क्या है, 1 आता है, उस समय हमारा LCM क्या आता है, दोनों नंबर का मल्टीप्लाई. 3 एंड 7, 3 इंटू 7 क्या आता है, 21. हमारा यहाँ पे LCM कितना मिल गया है, 21. सो दिस इज द LCM. Then after we had learned the prime factorization. So what is the prime factorization? A factor in which every factor is the prime is called prime factorization of number. Every number we need a prime. Prime factorization means every number we want a prime. So in this topic we had learned, we had take out the factor of the number up to a number is the prime number. For example, now look at here 150. 150 के हमने फैक्टर निकाले हैं जब तक वो कौन से नंबर नहीं आता है, प्राइम नंबर. सो 2 इंटू 75 क्या होता है, 150 होता है. सो 2 इज द प्राइम. नाउ विल टेक आउट द फैक्टर ऑफ 75. सो नाउ लुक एट हियर 75 लास्ट डिजिट इज द 5. ये लास्ट डिजिट क्या है, 5 है, तो ये 2 के साथ डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 2 के डिवीजन के लिए हमें लास्ट डिजिट क्या चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8. नाउ वी विल चेक 3 के साथ डिवाइड किया तो कितना आता है, 25. सो 3 इज नाउ प्राइम नंबर, 25. नाउ 5 इंटू 5 25 होता है, दोनों 5 दोनों भी प्राइम नंबर है. तो हमारे यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 150 के 2, 3, 5, 5. दिस इज द फैक्टर ऑफ द 150. देन आफ्टर वी हैड टेक आउट द प्राइम फैक्टराइजेशन बाय डिवीजन मेथड से हमने प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते. फॉर एग्जांपल 30 को 2 के साथ डिवाइड करते तो क्वेश्चन 15 मिलता है. ओके, नाउ 2 इज द प्राइम नंबर. नाउ 15 यहाँ पे भी हम कौन से नंबर के साथ डिवाइड करेंगे, प्राइम नंबर के साथ. नाउ 3 के साथ डिवाइड होता है, 3 प्राइम नंबर है. 3 को 15 के साथ डिवाइड करते तो क्वेश्चन 5 मिलता है. नाउ 5 इज द प्राइम. 5 को 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमें क्वेश्चन मिलता है 1. सो व्हाट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 30? 2, 3, 3. दिस इज द फैक्टर ऑफ द 30. So this is the prime factorization by using division method. Then after we had learned the SCF by prime factorization. SCF by prime factorization. In this topic we had learned, first we had take out the factor of number of factors. Prime factor we had take out. For example 6 and 18 prime factorization is 6 prime factorization 2, 3 and 18 prime factorization 2, 3, 3. So which is the common 2 and 3, which is that both are the common. Now we are take out the common factor. Then after we will multiply both number. 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलता है, 6 मिलता है. मतलब ये होता है HCF होता है. LCM में क्या करते हैं, जो कॉमन नंबर है, अगर हमें 8 और 16 का LCM निकालना है तो हम क्या करेंगे, पहले कॉमन नंबर लिख देंगे फिर अनकॉमन लिख देंगे. 2, 3 ये कॉमन नंबर लिख दिया है. अभी इसमें से अनकॉमन क्या है, हम 3 लिख देंगे. 2, 3 और 3 ये हमारा हो गया है. अभी अब सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 3 18. सो हमारा यहाँ पे LCM क्या हो जाएगा, 18 मिला. सो दिस इज डिफरेंट बिटवीन द SCF एंड LCM. ठीक है.
प्राइम फैक्टराइजेशन दोनों में निकालते हैं, लेकिन जब एचसीएफ निकालते हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन में तो क्या करते हैं, कॉमन नंबर लिख देते हैं। पहले कॉमन नंबर लिख देते हैं और फिर उसके बाद अनकॉमन। बट एलसीएम में क्या करते हैं, कॉमन नंबर लिखते हैं फिर अनकॉमन लिखते हैं। एचसीएफ में सिर्फ हम कॉमन नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं और एलसीएम में हम कॉमन नंबर को वन टाइम लिखते हैं और अनकॉमन नंबर को फिर लिखते हैं और उसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। सो दिस इज द एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देन आफ्टर वी हैड लर्न द टेस्ट ऑफ डिविजिबल। सो हमने टेस्ट किया था कि कौन से नंबर किसके साथ डिवाइड होता है। सबसे पहले 10 का डिविजिबल के लिए हमें लास्ट डिजिट क्या चाहिए, 0 चाहिए। अगर लास्ट डिजिट 0 है तो वो 10 का डिविजिबल है, ठीक है। देन 5 डिविजिबल, 5 का डिविजिबल निकालने के लिए हमें लास्ट डिजिट 0 नहीं तो 5 चाहिए। क्या चाहिए, 0 नहीं तो 5। देन 2 के डिविजिबल के लिए हमें लास्ट डिजिट क्या चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8। अगर ये नंबर लास्ट डिजिट में आते हैं तो वो होता है 2 का डिविजिबल। देन 3 के डिविजिबल के लिए हमें क्या चाहिए, 3 के डिविजिबल के लिए हम जो भी नंबर है, फॉर एग्जांपल 1 और 5 है, 1 और 5 को ऐड करके जो नंबर आता है, 1 और 5 को ऐड करेंगे तो क्या आता है, 6। सो 6 3 के साथ डिवाइड होता है, यस। अगर 6 3 के साथ डिवाइड होता है तो 15 ये 3 का डिविजिबल है। देन 4 के डिविजिबल के लिए लास्ट जो 2 डिजिट होते हैं जो 1 और 10 प्लेस पे आते हैं, वो नंबर अगर 4 के साथ डिवाइड होता है तो वो 4 का डिविजिबल है। देन लास्ट इज द 9 के डिविजिबल के लिए हम क्या करते हैं, सेम लाइक दैट 3 के जैसे ही 9 के डिविजिबल के लिए हम ऐड करके देखेंगे सभी नंबर को, जो भी नंबर है। यहाँ पे देखो 13,464 है, सबको ऐड किया है 1, 3, 4, 6 और 4, इसको सबको ऐड किया है। ऐड करने के बाद 18 आता है तो 18 9 के साथ डिवाइड होता है, यस 18 9 के साथ डिवाइड होता है, मतलब ये जो नंबर है ये 9 का डिविजिबल है। सो दिस इज द डिविजिबल, ओके। नाउ आवर टुडेज टॉपिक, mathematics A and mathematics B. So I hope all of you nicely understood lesson. So now look at here. Question number 1. List 5 multiples of 10. 10 के 5 multiples निकालना है। मल्टीपल्स के लिए हम क्या करते हैं, 1 नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 10 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया है तो कितना मिला है, 10 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 20, 10 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 30, 10 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया है तो 40, 10 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया है तो 50। सो हमारे लिस्ट कितने निकालने हैं, 5। सो मल्टीपल ऑफ 5 के मल्टीप्लाइज क्या है, 10, 20, 30, 40 एंड 60. Okay, so this is multiples. Now we want a list of 5 factors. Now here is the word is coming factors. हमें 16 के 5 factors निकालने हैं, ठीक है। 1 is the every number of factors. 1 ये सभी नंबर का फैक्टर होता है, 1 एंड itself नंबर, 1 और 16 ये दोनों भी फैक्टर हो जाएंगे। नाउ अगर हम 2 को 16 के साथ डिवाइड करते हैं, नाउ लास्ट डिजिट इज द 6, लास्ट डिजिट 6 है, मतलब ये 2 के साथ डिवाइड होगा, यस। अगर हम 2 के साथ 16 को डिवाइड करते तो हमें मिलता है 8 मिलता है, क्या मिलता है, 8 मिलता है। तो हमने 8 लिख दिया है और 4 4 का 16। सो हमारे 16 के फैक्टर्स क्या है, 1, 2, 4, 8 एंड 16। दिस इज द फैक्टर ऑफ 16। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. Now question number 2, filling the blanks. All number are multiple of the number. All number is multiple of number 1. सभी नंबर किसके मल्टीपल होते हैं, 1 के होते हैं। We filling the blanks, find the greatest multiple of a number. We cannot find the greatest multiple of number. हम मल्टीपल का ग्रेटेस्ट नंबर नहीं निकाल सकते क्योंकि वो अनलिमिटेड रहते हैं। हम
कितने भी नंबर के साथ हम नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो अनलिमिटेड आता है। तो यहाँ पे क्या आता है, वी कैन नॉट फाइंड द ग्रेटेस्ट मल्टीपल ऑफ नंबर। हम किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट मल्टीपल नहीं निकाल सकते, क्योंकि हम किसी नंबर को कोई भी नंबर के साथ मल्टीपल कर सकते। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको हम 2 4 5 6 8 9 2 5 इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यस, कर सकते हैं। हम किसी भी नंबर को किसी भी नंबर के साथ मल्टीपल कर सकते हैं। तो किसी भी नंबर का कोई भी ग्रेटेस्ट मल्टीपल नहीं होता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ दीज आर द डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 9। ये जो नंबर दिए है नीचे, उसमें से कौन से नंबर है जो 3 और 9 दोनों को भी डिविजिबल करता है। ठीक है, सो फर्स्ट नंबर इज द 456। अभी सबको ऐड करके देखेंगे। 4 + 5 9, 9 + 5 9 + 5 15 है। तो 15 3 के साथ डिवाइड होता है, लेकिन 9 के साथ होता है क्या? नहीं। तो ये डिविजिबल है क्या बोथ नंबर को? नहीं। देन नेक्स्ट नंबर 3 + 8 11, 11 + 7 18। सो 18, 9 2 = 18 और 3 6 = 18, मतलब दोनों भी साथ ये डिविजिबल हो रहा है। तो मतलब 387, 3 और 9 दोनों नंबर का डिविजिबल है। नाउ नेक्स्ट नंबर 4356। 4 + 3 7, 7 + 5 7 + 5 12, 12 + 6 18। यहाँ पे भी 18 आ रहा है। 18 3 और 9 दोनों के साथ डिवाइड होता है, मतलब 4356 ये भी 3 और 9 का डिविजिबल है। नाउ नेक्स्ट नंबर 6 + 1 7, 7 + 9 7 + 9 16 and 16 + 5 21। सो 21 3 के साथ डिवाइड होता है, लेकिन 9 के साथ डिवाइड नहीं होता है, वो 9 का डिविजिबल नहीं है। सो हमारे डिविजिबल कौन से नंबर है? 387 and 4356। 387 and 4356 आर द डिविजिबल बाय बोथ 3 and 9। कौन से नंबर है? 387 and 4356, दैट बोथ नंबर आर डिविजिबल बाय 3 and 9। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, लिस्ट ऑल प्राइम एंड कंपोजिट नंबर बिटवीन 1 and 10। 1 और 10 के बीच के हमें प्राइम और कंपोजिट नंबर निकालना है। फर्स्ट इज द प्राइम नंबर। सो विच इज द प्राइम नंबर बिटवीन द 1 and 10? 2 3 5 7, this is the prime number between the 1 and 10. So what is the prime number? A number which have only two factor, 1 and the itself number। 2 के कोई फैक्टर होते क्या? नहीं। 3 के होते क्या? नहीं। 5 के होते क्या? नहीं। 7 के होते क्या? नहीं। इसके ओनली 2 फैक्टर्स है, 1 and itself number। नाउ कंपोजिट नंबर। So what is the composite number? A number which have a more than 2 factor, this is called composite number। So 4 के 2 से ज़्यादा नंबर फैक्टर से यस, 6 के यस, 8 के यस, 9 के यस और 10 के यस। So what is the composite number? 4 6 8 9 and 10, this is the composite number in the list from 1 to 10। So this is question number 4। Now question number 5, find the SCF। what? Find the SCF, factors of 21। SCF निकालना है, फैक्टर्स निकालना है 21 and 28 के। सो ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल हाउ टू टेक आउट फैक्टर। सबको पता है फैक्टर कैसे निकालते हैं। सो व्हाट इज द फैक्टर ऑफ 21? 21 के फैक्टर है 1 3 7 and 21, दिस इज द फैक्टर ऑफ 21। नाउ फैक्टर ऑफ 28, विच इज द फैक्टर ऑफ 28? 28 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1 2 4 7 14 and 28, दिस इज द फैक्टर ऑफ 28। नाउ which is the common number? 1 and 7, this is the common factor। now we want the SCF। SCF means highest common factor। so which is the highest common factor? 7 is the SCF of the 21 and 28। now next is the factors of 18 and 36।
18 के फैक्टर्स आते हैं 1, 2, 3, 6, 9 एंड 18। फैक्टर कैसे निकालते हैं हम, एक एक नंबर के साथ डिवाइड करके देखते हैं। एंड फैक्टर ऑफ 36, 36 के फैक्टर क्या होते हैं 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12 एंड 36। दिस इज द फैक्टर ऑफ 36। नाउ विच इज द कॉमन नंबर 1, 2, 3, 6, 9। दिस इज द कॉमन फैक्टर in 18 and 36. Now we want a SCF. Which is the SCF from the 18 and 36? 9 is the SCF, highest common factor. So this is the factor of 18 and 36. Now question number 6, find the LCM. LCM means lowest common multipliers. So हम क्या करेंगे 20, फर्स्ट नंबर इज द 20 एंड 30। 20 के हम LCM निकालेंगे, फर्स्ट मल्टीप्लाइज निकालेंगे। इट इज़ द मल्टीप्लाइज नंबर 20, 40, 60, 80, 100, 120 एंड एक्सेट्रा। बहुत सारे नंबर निकलते हैं, ठीक है। और हमने 30 के फैक्टर्स मल्टीप्लाइज निकाले हैं 30, 60, 90, 120 एंड सो ऑन। So which is the common 60 and 120, that both are the common. Now we want a LCM, lowest common multipliers, which is the number is small from 60 and 120. 60 is the small, so 60 is the LCM. Then 28 and 35, 28 और 35 के मल्टीप्लाइज निकालें। मल्टीप्लाइज कैसे निकालते हैं, 1 1 नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ, ऐसे हम क्या करते हैं मल्टीप्लाइज। सो 28 के मल्टीप्लाइज क्या निकले 28, 56, 84, 112, 140 एंड 168। दिस इज द मल्टीप्लाइज ऑफ 28 एंड मल्टीप्लाइज ऑफ 35। 35 की मल्टीप्लाइज क्या है 35, 40, 105, 140, 175। दिस इज द मल्टीप्लाइज ऑफ 28। नाउ विच इज द नंबर इज कॉमन फ्रॉम बोथ, द कॉमन नंबर इज द 140। सो व्हाट इज द LCM, 140 इज द LCM फ्रॉम 28 एंड 35. So this is question number 6. Now look at here question number 7, marital maths. So question number A, the smallest multiple of 10 is, 10 का सबसे छोटा मल्टीप्लाइज क्या होगा 10 होगा। सभी नंबर का मतलब जो भी नंबर है उसका स्मॉलेस्ट मल्टीपल क्या आता है इटसेल्फ नंबर होता है। 10 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है 10 होता है, तो सबसे छोटा मल्टीप्लाइज क्या होगा 10। देन द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ 10 इज, फैक्टर हियर इज कमिंग मल्टीप्लाइज एंड फैक्टर। सभी नंबर का स्मॉलेस्ट फैक्टर होता है 1। क्या होता है 1 इज द एवरी नंबर ऑफ फैक्टर एंड 1 इज द एवरी नंबर ऑफ स्मॉलेस्ट फैक्टर। सो सबसे छोटा फैक्टर 10 का क्या होगा 1 होगा। LCM ऑफ 5 and 7 इज, सो when we are LCM टेक आउट, ठीक है। अगर दोनों भी नंबर, जो भी नंबर दोनों है, दोनों भी को प्राइम नंबर है। व्हाट इज द को प्राइम नंबर, अ नंबर विच हैव अ कॉमन फैक्टर इज द 1। दिस इज कॉल्ड को प्राइम नंबर। 5 और 7 में कॉमन क्या होगा 1 कॉमन होगा, दोनों भी प्राइम नंबर है। सो जब हमारे को प्राइम नंबर होते हैं तब उस नंबर का LCM क्या होता है, वो दोनों का मल्टीप्लिकेशन। सो 5 और 7 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा LCM क्या मिलता है 35। SCF ऑफ 3 and 6 इज द, हाँ जब क्या है यहाँ पे कॉमन नंबर है तो हमारा क्या है ये दोनों कॉमन में 1 है, तो हम जब 1 नंबर दोनों में कॉमन है तो उसका LCM क्या होता है दोनों का मल्टीप्लिकेशन, मतलब 5 into 7 क्या होगा 35। नाउ हियर इज द SCF ऑफ 3 and 6 इज द, जब LCM निकालते हैं और अगर जो नंबर दोनों में से एक नंबर दूसरे नंबर का क्या होगा फैक्टर हो सकता है, मतलब 3 के साथ डिवाइड होता है, यस होता है, तो उस समय जो छोटा नंबर होता है वो हमारा क्या होता है SCF होता है। ओके, फ्रॉम द 3 and 6 विच इज द कॉमन,
अगर 3 और 6 के फैक्टर निकालेंगे, 3 के फैक्टर क्या होंगे, 1 एंड 3 होंगे बिकॉज 3 इज द प्राइम नंबर। एंड 6 के फैक्टर क्या होंगे, 1 2 3 एंड 6, ये हमारे फैक्टर हो जाएंगे। नाउ विच इज द नंबर इज कॉमन, 3 इज द कॉमन, मतलब ये 3 और 6 में से छोटा क्या है, 3 है, तो ये 6 का डिविजिबल है, मतलब हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, एचसीएफ हमारा 3 हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर ई, 48695 डिविजिबल बाय 5। ये जो नंबर दिया है 48,695, ये 5 का डिविजिबल है क्या, यस। अगर लास्ट डिजिट 5 और 0 होता है तो वो 5 का डिविजिबल होता है। सो लास्ट डिजिट क्या आ गया हमारा, 5 आ गया है, मतलब ये 5 का डिविजिबल होगा, यस। सो दिस इज डिविजिबल ऑफ 5। देन नेक्स्ट इज द 38912 डिविजिबल बाय 4। 38,912, ये 4 का डिविजिबल है, यस। लास्ट 2 डिजिट अगर 4 के साथ डिवाइड होता है तो वो 4 का डिविजिबल होता है। लास्ट 2 डिजिट क्या है, 12 है, सो 12 4 के साथ डिवाइड होगा, यस। 4 इज द डिविजिबल बाय 12 मीन्स दिस is the divisible by 4, so yes. So this is our mathematics A. Mathematics B for a higher skill we will be see in next period. So I hope all of you nicely understood. Thank you and have a nice day.